Hi everyone. So सबसे पहले तो मैं ये बता दूं that I am no master, no authority, no expert on the subject that I am going to speak about. Uh, Organic way of life became a part of my life very organically. मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लगा. I think from the time I started respecting myself, from the time I started respecting my body, from the time I started understanding that there is absolutely no sense in achieving anything if your health is not there with you, is when I think I started, you know, going the organic way. And I know that this is no rocket science. ये कोई बहुत difficult subject नहीं है समझने के लिए. It is not something that one will not understand. I think all of us we understand what organic way of life is. Is it just that some of us have the time, like me, बहुत ही time है मेरे पास में, to kind of give it a thought, and some people are too busy in their life to give it a thought. And this message actually is more for people who are very busy in their life to not give it a thought, because I would like to say that it will definitely make a difference, both in terms of your health and in terms of your spirits as well. So let me just tell you how it started with me. I mean, I don't want to really get into the technicalities of what organic is. As we all know, organic is natural, trying to be as natural as possible. Organic feelings we have heard of, organic attitude, or organic reaction. We've all heard of the word organic. So we know that organic is all about being natural. For example, when we go to a forest or when we go to a hill station, we mostly say how pure the air is. We feel कि अरे यार क्या ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो कितनी शुद्ध हवा है. And basically, what we're trying to say is that a very organic air, you know, we are breathing air which doesn't have too many contaminants, which doesn't have too many pollutants. So that is exactly what organic is. हम जब खाते हैं तब भी हमें सोचना चाहिए कि यार हम जो खा रहे हैं उसके अंदर कितने pollutants हैं, उसके अंदर कितने contaminants हैं. एक बार हम सोचेंगे तो शायद अपने आप ही वो बदलाव एक हमारे में आ जाएगा. मेरे लिए ये सिलसिला शुरू हुआ जब मैं छोटा था और मम्मी हमें स्प्राउट्स सर्व किया करती थी ब्रेकफास्ट के अंदर, और मैं रोज़ स्प्राउट्स खा खा के तंग हो चुका था. आई वाज जस्ट यूज्ड टू वॉच स्प्राउट्स एंड जस्ट वंडर कि क्या है मम्मी रोज़ क्या स्प्राउट्स खिला देते हो. सो now I know, since we come from a house which was vegetarian, so mom used to actually feed us sprouts, thinking that it's very healthy. थोड़ा प्रोटीन जाएगा बच्चों के अंदर, अंडे भी खाने को नहीं मिलते थे तब, कि तो उनमें थोड़ा प्रोटीन जाएगा. एंड देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ अ लाइफ. एंड मैं पढ़ता था स्प्राउट्स के बारे में कि क्या स्प्राउट्स हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है इसके अंदर. एंड दैट इज़ व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट स्प्राउट्स एक्चुअल में आर द ओनली लिविंग फूड्स और वन ऑफ द लिविंग फूड्स इन द होल वर्ल्ड. वो हमेशा जी रहे होते हैं, दे आर ऑलवेज लिविंग. सो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्प्राउट्स आर वे मोर देन एनीथिंग एल्स. दैट रियली फैसिनेटेड मी, बिकॉज आई रियलाइज दैट यार हम बाकी सब्जियां और फल जो लेते हैं वो पता नहीं उनकी वो कब पेट से निकले होंगे, और हमें पता भी नहीं है कि वो व्हेन दे स्टॉप लिविंग. एंड हियर इज समथिंग दैट एक्चुअली इज लिविंग ऑल द टाइम. तो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ. एंड ट्रस्ट मी, जब मैं व्हेन आई वाज काइंड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड वर्क एंड व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, आई स्टार्टेड पुटिंग स्प्राउट्स इन ऑलमोस्ट एवरी मील ऑफ माइन. दाल में स्प्राउट्स, सब्जी में स्प्राउट्स, भुर्जी में स्प्राउट्स, टू द एक्सटेंट दैट when मंजरी केम इन माई लाइफ, शी वॉज शॉक्ड बिकॉज शी रियलाइज है कि यह आदमी तो मतलब हर चीज़ का स्प्राउट्स डालता है, इसका बस चले तो रोटी में भी स्प्राउट्स डाल दे. चावल में स्प्राउट्स डालता था मैं. So for me, it was just putting a little dose of nutrition in my food every time I would eat, and then I would just feel good. मतलब पता नहीं मेरी physically मुझे कितना फ़र्क पड़ता था, लेकिन I started feeling very good about it because I would know that कि मैंने भैया कुछ healthy खाया. It was also psychological along with the health benefits. बस ऐसे ही शुरू हुआ सिलसिला, और उसके बाद तो फिर मैं एक अलग रास्ते पे निकल गया. आई मीन आई स्टार्टेड, आई रिमेंबर माई फादर यूज टू हैव मेथी का पानी फॉर हिज नीज. तो वो मेथी का पानी पीते थे, मेथी को सो करते थे ओवरनाइट, एंड देन मॉर्निंग में ही वुड हैव द मेथी का पानी. तो एक दिन मैंने ऐसी वो मेथी जब बची हुई थी उसको मैंने गमले में फेंक दिया, और कुछ दिनों के बाद देखो कि ये मेथी निकला है उसके अंदर. एंड आई रियलाइज दैट ये तो बड़ा ही सिंपल मामला. उसके बाद मेथी के बाद मैंने थोड़ा धनिया के सीड्स डाले, धनिया निकल के आ गया. मैंने कहा ये तो आई मीन नथिंग कैन बीट दिस बिकॉज यू हैव समथिंग नाउ राइट ग्रोइंग इन योर हाउस. यू डोंट हैव टू गो टू द मार्केट एंड यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि कहाँ लगाया होगा, यू नो कहाँ होगा. एंड इट जस्ट मेक्स यू फील गुड. इनफैक्ट द वेरी साइट ऑफ इट मेक्स यू फील वेरी वेरी गुड. आपके घर में हरे हरे धनिया उग रहा है, मेथी उग रही है, पुदीना उग रहा है, won't like it. I mean, when it's growing, and
वहीं थोड़ा सा निकालो, जितना ज़रूरत है आपको उसको उतना डाल दो। वहाँ से शुरू हुआ मामला और उसके बाद में मैंने अपने घर के अंदर उगाना शुरू कर दिया। अब मेरे घर के अंदर, मेरे घर के छत के ऊपर, मैं जहाँ जगह मिलती है, बाय द वे, आई मीन आई बिलीव इन पुटिंग एडिबल प्लांट्स, सो वेर एवर आई फाइंड स्पेस आई पुट समथिंग विच इज़ एडिबल। सो इनफैक्ट इस समय तो घर में पम्पकिन लग रहा है, तुरई है, लौकी है, सॉरी, पालक है, करेला है, टमाटर है, हरी मिर्ची है। सो इट्स लाइक एक्चुअली इट फील्स सो गुड बिकॉज यू वॉन्ट टू वेक अप एंड वंडर कि अच्छा आज अभी ऊपर छत से क्या आएगा, या नीचे विंडो सिल के बाहर जो थोड़ा सा पैच बनाया हुआ है वहाँ से क्या आएगा, बैंगन खाने को मिलेगा क्या आज। इट इज़ ऑल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इट्स ऑल्सो अ वेरी नाइस वे ऑफ एंगेजिंग योर सेल्फ इन समथिंग विच इज़ नेचुरल, so it just makes you feel very very good. The whole point of me talking about this right now is that it is not difficult. It is not difficult to maybe little shift me नहीं कहूँगा. It is not about actually changing your lifestyle. It is just about including a little bit of more of a organic way of life. And if you ask me कि क्या फ़र्क पड़ा है मेरे को, you know, I have no answers to for that. All I can say is that I've never ever felt low on energy. It could be for various reasons. I would like to attribute that to the way of my way of eating organic stuff. I haven't fallen sick in the last maybe I don't even remember. मतलब मैंने कब दवाई खाई हो, मैंने कब antibiotics खाई हो. So it could be because of my eating habits. Thirdly, I would say it has always kept me so happy. Like when I go to my other house in Goa, which is full of organic plantation, it gives me the joy. I mean, I don't go and look at anything else. And first thing is what I do when I park my car is actually run to the garden and see my my fruits and vegetables, and it gives you immense, what do I say, pleasure, delight, joy, whatever you would call it, to just see that. I mean, there have been occasions actually जब मैं बॉम्बे से गोवा गया हूँ फ्लाइट लेके सिर्फ 2 लौकी खाने के लिए, बिकॉज उनके वहाँ 2 लौकी लगी है. So that's the kind of passion it becomes. It just gives you that happiness. Small things I do which are very could be very childish, could be very kiddish, but then they all matter. Like anywhere I go, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ और मुझे वहाँ मालूम पड़ता है कि ऑर्गेनिक उग रहा है, तो वहाँ से उठा कर ले आता हूँ. मैं अभी हरिद्वार में था, तो हरिद्वार में हमारे बाड़ी में जहाँ मैं रुका हुआ था उसके बाजू में एक मंदिर था. मंदिर में देखा मैंने तो आंवले लगे हुए हैं एक पेड़ के अंदर. एंड आई न्यू दैट कि वो तो आंवले का पेड़ जो है वो कब से होगा मंदिर के अंदर. नोबडी वुड बी पुटिंग एनी पेस्टिसाइड्स, नथिंग. सो मी एंड माई टीम वेंट एंड पिक दोज आंवलास. वो पूरे स्टेप के बाद में घर पे आए. घर में आने के बाद में आंवले को हमने प्रिजर्व कर लिया. इन टर्म्स ऑफ आंवले को हमने नींबू के जूस में डाल दिया. नींबू भी कहाँ से आए थे? नींबू भी उत्तराखंड से आए थे. So wherever I travel, any part of the country, I try and eat the local produce, which is organic. I try and pick up not the things from the commercial market. I try and pick up things किसी के घर से. मैं तो बेशरम भी हूँ एक्चुअली. किसी घर में जाता हूँ और मुझे लगता है कि अरे वहाँ पे ये उग रहा है, and I tell them that कि forget about anything else. Can you just give me a little bit of your तुरई या भिंडी या टमाटर जो भी आपके घर में उग रहा है. And people find it very amusing sometimes, but then that's how it is. It's just I think a way of my life. So all I want to tell everyone is that take out some time for yourself. Do not really expect that it will bring a huge transformation in your health or in your life. All you have to do is just believe in the fact that you are not taking inside any pesticides, you're not taking any chemicals inside your body, and you're respecting your body. And उसके बाद जो होना वो तो होगा. You can't do much about it. But a little shift, and trust me, you'll get a lot of happiness. So here's to organic way of life and to healthy living. करेला घर पे होगा, आंवला घर पे, पनीर घर पे बना है, पालक घर का है. आंवला जो मैं बता रहा था आपको उत्तराखंड से लेके आऊँ, ये बनी है स्प्राउट्स की दाल.
This is my lunch every day. Almost like this.